Good morning, everyone. I am Swati Pandey, faculty in EX department, and today I want to explain you the one topic of electrical engineering, that is single phase transformer. So let us start. In single phase transformer, firstly we have to learn the basic concepts of transformer, such that what is transformer, principle of operation, working process, types of transformer, losses in transformer, auto transformer, testing, application. These are the some topics that is related to the transformer. So firstly, we will start here that what is transformer. Okay, so as you know that transformer is a static device which transfers AC power from one circuit to another circuit without change in frequency. It means the transformer can change one circuit transformer can change the power from one circuit to another circuit, but the frequency will be same at the starting point to the ending point. There will be no change in the frequency. For example, if the frequency at the starting point is 50 hertz, then the ending point also it will be 50 hertz. Okay, एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर क्या है, कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो एसी पावर को ट्रांसफर कर रहा है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, और उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन. प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन को समझने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेप अप और स्टेप डाउन दो टाइप के ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि अगर हमारा V1 ग्रेटर देन V2 है, इट मींस अगर प्राइमरी वाइंडिंग इज ग्रेटर देन इन कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, then the transformer is known as step down transformer, and the V2 is greater than V1, then the transformer is called as step up transformer. It means अगर हमें आउटपुट साइड में ज्यादा पावर मिल रही है in comparison of input, then the transformer is called step up transformer, and अगर प्राइमरी साइड में ज्यादा पावर मिल रही है तो इट इज कॉल्ड द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. ओके, नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मर. Here you can see this is a transformer circuit. This blue line represents the transformer core, and red line represents the primary winding, and this blue line's windings is called the secondary winding. Here the supply voltage is V1 and the current is I1, and which current is going to the primary winding, so this is known as for the primary voltage will be Vp and the current will be Ip, and after that the flux will produced in the winding, so it will come in the secondary winding. Induced the common flux will be produced in the winding, so this link also with the secondary winding. Then the EMF induced in also secondary winding, this is known as the E2, and at the output side we will got the change in voltage, change in current, that is secondary side का voltage है आपका Vs और secondary side का current है आपका Is, and the number of turns in the primary winding is Np and number of turns in the secondary winding is Ns. So this is the simple circuit for the transformer. You can see in each and every book this type of circuit. So let us start the principle of operation. So all of you know that the transformer work on the principle of mutual induction, or we can say the Faraday law of electromagnetic induction. तो Faraday law of electromagnetic induction क्या होता है कि E is equal to N d phi by dt. तो E है हमारा EMF induced, N है हमारे नंबर ऑफ टर्न्स, एंड डी फाई एंड dt हमारा क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स. ओके, तो जब आप यहाँ पर इसका जो अपोजिशन किया था वो किसने किया था, लैंज ने किया था. तो लैंज के अकॉर्डिंग अगर आप वहां पर देखेंगे तो आपको इक्वेशन मिलती है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय dt. So in simple words you can understand the principle of operation in the one line, that transformer work on the principle of mutual induction, or we can say the Faraday law of electromagnetic induction. Mutual का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम किसी एक चीज पे इफेक्ट करें तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली इफेक्टेड हो जाए, मतलब म्यूचुअली कनेक्टेड है वो एक दूसरे से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन. ओके, नेक्स्ट इंडक्शन लॉ, फेराडे लॉ. ये आपको मैंने अभी बताया कि E is equal to N d phi by dt, या आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
नेक्स्ट वर्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है। तो इसको वर्किंग को समझने के लिए वर्किंग आप देखिए ट्रांसफार्मर की कि यहाँ पर जो जैसा कि मैंने आपको बताया एसी सप्लाई हमने यहाँ पर दी हुई है। ये एसी सप्लाई हमारी कहाँ जाती है, यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगी। तो जैसे ही ये प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगी तो ये सर्कुलेट होगी ये, और इसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बोलते हैं E1, क्योंकि वो प्राइमरी साइड पे इंड्यूस्ड हो रहा है। और जब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर होगा तो यहाँ पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कोर कॉमन है तो इसलिए यहाँ पर एक कॉमन फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, वो होता है हमारा कॉमन फ्लक्स फाई। तो जब ये कॉमन फ्लक्स पूरे में रोटेट होगा तो फ्लक्स कहाँ पहुंचेगा, हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग में एनर्जाइज हो जाएंगी। और एनर्जाइज होने के बाद यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वो होगा E2, और यहाँ पर इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो होंगे हमारे N2। ओके, और जब ये इसमें सर्कुलेट होगा पूरा तो लास्ट में आपको जो मिलता है यहाँ पर वो आपको मिलता है चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन करंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि V2 और I2 वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये पूरा इस तरीके से इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अब इसको आपको समझने के लिए अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है, किस किस टाइप के, तो प्राइमरी सेकेंडरी सब में होगा, बट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर को मैं आपको बता देती हूँ। मेनली 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर होते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप एंड शेल टाइप बोथ आर बेस्ड ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन। अगर आप उसके वर्किंग फेज के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर हो सकता है और 3 फेज का ट्रांसफार्मर होता है ना। और अगर आप स्टेप अप और स्टेप डाउन 2 टाइप के ट्रांसफार्मर और होते हैं, ये जो यहाँ पर आपको लिखे हैं, अनदर 2 टाइप्स इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे मेनली जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो होते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर। So this is the introductory class for the transformer, and we will start the types of transformer in our next class. Okay, thank you so much.